Here I am going to discuss heap sort algorithm with the example. So before discussing heap sort, first we explain what is a binary tree and what is a complete binary tree. So binary tree, it is a collection of nodes, and there is a specially designated node that is called the root node, and it is a hierarchical data structure. After that, each and every node, internal node, have at most 2 children. किसी भी node के कम से कम 2 child होंगे. Okay. So for example, this one. So this is a example of binary tree. So each and every node have 2 children. 20 have 25 and 15. 25 have 15 and 92. So there are 2 children. 15 के भी 2 children हैं. That is a 30 and 15. नो डाउट यहाँ पर एक चाइल्ड भी है. सो मैक्सिमम आपके 2 चाइल्ड हो सकते हैं इन केस ऑफ बाइनरी ट्री. नाउ व्हाट इज ए कंप्लीट बाइनरी ट्री? So a binary tree which has all levels completely filled except last level. So that is called a complete binary tree. So last level अगर completely filled भी है तो that is also a complete binary tree. It may be के last level complete ना हो. So last level must also filled from left to right. Each and every node filled from left to right. So for example, this is root level number 1, and there are 2 child, okay, 25 and 35. Level number 2, and level number 3, there are 4 childrens, okay, और entry आपका कहाँ से होगा? Left to right. So 22, 11, 30 and then 5. And for example, in the last level there are only 3 child. So 50 and 7, 22 के children से, okay, and 45 is the child of 11. Okay, तो हमने जो एंट्री की है वो लेफ्ट टू राइट है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री. ओके, सपोज हमारे पास में अगर और नोट्स होते 5 नोट्स, तो 1 एक एंट्री होता है यहाँ पर, और यहाँ पे 2 एंट्रीज और यहाँ पे 2 एंट्रीज. तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द कंप्लीट बाइनरी ट्री. ओके, नाउ हाउ टू सी एरे इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री. हम एक एरे को बाइनरी ट्री के फॉर्म में कैसे देख सकते हैं? दैट इज द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री. सो एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड लेयर वाइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. आपके जो एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो टॉप से बॉटम में हम स्टोर करते हैं, और लेयर वाइज स्टोर करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ईच लेवल एरे एलिमेंट्स फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. So let the given array is this one. Okay, so there are 10 elements. So हम किस तरीके से यहाँ पे स्टोर करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट नंबर को a of 1 के ऊपर स्टोर किया. So this is the root. Okay, the first element of array is the root, and there are 2 child. So 10 का लेफ्ट चाइल्ड है 25 और 10 का राइट है that is 35. So a of 2 and a of 3 is the a of 2 is the left of a1, a of 3 is the right child of a1. Okay, so second level. And third layer में हम आपके fourth element स्टोर करेंगे, that is 22, 11, 22, 11 and then 35, 30 and then 5. So this is 30 and then 5. That is a of 4, a of 5, a of 6 and then a of 7. So the left child of 25 is 22. So 25 का left child है 22 और 25 का right child है 11. So 25 का right child 11 है. Okay. So this is layer wise हम इस तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी में फीड करते हैं. And the remaining terms जो आपके बचे हैं, that is 57 and 45, that is a of 8, a of 9 and then a of 10. तो ये आपके from left to right ही हम यहाँ पे fill करेंगे. Okay, so this is the representation of array in the form of binary tree. Okay, numbers तो आपके array के अंदर ही हैं, लेकिन हम इसको imagine कर रहे हैं किस फॉर्म में? बाइनरी ट्री की फॉर्म में. सो 35 का लेफ्ट चाइल्ड कौन है? दैट इज 30. a of 3 का लेफ्ट चाइल्ड है a of 6. सो a of 3 is the parent, a of 6 is the left child, and a of 3 is the parent, so a of 7 is the right child. Okay, so this is a of 7. So this is the representation of array in the form of
binary tree, complete binary. So come to the heap. Now heap is a very useful data structure for implementing a priority queue, and heap is defined to be a complete binary tree with its property that value of each node is at least as large as the value of its children node. So this is also called the max heap. So in max heap, the value of parent node is always greater than its children's. Okay, I divided by 2, this is the index number of parent and this is the index number of children's. So some mathematical terms हम पहले समझ लेते हैं sorting से जाने से पहले. So suppose I is the index number of any node, then this is the a of I means this is index number. So left child का index number क्या होगा? This is a double of I. So left child index number will be double of I, like that. And the right child index number will be double of I plus 1. Okay, so right child index number will be double of I plus 1. And what about the parent? So parent index number of I will be I divided by 2. So this is the floor value. So the index number of parent is floor value of I divided by 2. ठीक है, तो किसी भी नोड के लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स नंबर 2 आई है, आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स नंबर आता है, और अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करते हैं तो राइट चाइल्ड का इंडेक्स नंबर ड्राइव होता है, और अगर पेरेंट्स का इंडेक्स नंबर ड्राइव करना है तो इस नंबर को आप 2 से डिवाइड कर देंगे और उसका जो है फ्लोर वैल्यू आप कंसीडर करेंगे. सो दैट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ पेरेंट. Here you can see there are 11 numbers which are stored in the form of binary tree. This is a of 1, a of 2, a of 3. So how we can find the left child and how we can find the right child and how we can find the parent node. Suppose this is 5. So if you multiply 5 by 2, so double agar aap karte hain, so that is it, 2 multiply by 5, that is a of 10. So a of 10 is the left child. Okay, just like this one. और आप डबल करने के बाद 1 ऐड करते हैं, इट मींस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1, दैट इज 10 प्लस 1 11. सो a of 11 इज द राइट चाइल्ड, सो दिस वन. और आप इसके पेरेंट्स को कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं? सो आप इंडेक्स नंबर को 2 से सिंपल डिवाइड करेंगे, सो दैट इज 2.5 एंड फ्लोर वैल्यू ऑफ 2.5 is 2. So a of 2 is the parent of this node. Okay. सो आप किसी भी इंडेक्स नंबर को आप के थ्रू उसके लेफ्ट चाइल्ड को ड्राइव कर सकते हैं, उसके राइट चाइल्ड को ड्राइव कर सकते हैं, उसके पेरेंट्स के इंडेक्स नंबर को भी ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टर्म्स. ओके, यहाँ पे हमने सिंप्लिसिटी के लिए नंबर्स को 1 से स्टोर किया है. अगर हम 0 से स्टोर करेंगे तो फार्मूले में स्लाइटली चेंज होगा. सो इट विल बी लेफ्ट चाइल्ड विल बी 2i plus 1. ओके, एंड दिस विल बी 2i plus 2. ओके, नाउ what was the heap? This is the heap property. So value of each node is at least as large as the value of its children nodes. हर एक नोड की वैल्यू अपने चिल्ड्रन से ग्रेटर है. ओके, सो फॉर एग्जांपल दिस इज 65. सो 65 इज ग्रेटर देन 50 एंड 40. अगर आप 60 की बात करते हैं सो 60 इज ग्रेटर देन 45 एंड 55. ओके, 75 इज ग्रेटर देन 30 एंड 10. ओके, 70 is greater than 65 and 60. तो आप देखेंगे हीप की प्रॉपर्टी हर जगह होल्ड होती है. नाउ फाइनली अगर रूट के ऊपर देखते हैं, सो देयर आर 2 चिल्ड्रंस, दैट इज 70 and 75. सो 80 is greater than both numbers. ओके, तो डेफिनेटली हम बिग चाइल्ड से कंपेयर करते हैं और बिग चाइल्ड से ग्रेटर है तो डेफिनेटली वो दोनों चाइल्ड से बड़ा होगा. सो राइट नाउ यहाँ पे हीप की प्रॉपर्टी होल्ड होती है एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ heap. Okay, so I divided by 2 is the parent index number and I is the index number of child. Okay, so this is the heap property. So heap sort, this is the just introduction of heap sort. So heap sort is not a stable algorithm. Okay, stability nahi hai yahan par, and it is a non-recursive. And heap sort is an in-place algorithm. आपको यहाँ पे कोई additional auxiliary array की जरूरत नहीं है. So we can say that it is the improved version of selection sort in terms of time complexity.
ऑलमोस्ट इसकी जो फंक्शनलिटी है, इसका जो मेथड है वो सिलेक्शन सॉर्ट के जैसा ही है। वहां पे भी आप एरे को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड एरे। ओके, धीरे धीरे सॉर्टेड एरे बढ़ता जाता है, अनसॉर्टेड एरे डिक्रीज होता जाता है। वहां पे भी आप सिलेक्शन करते हैं एक चीपेस्ट एलिमेंट का या बिगेस्ट एलिमेंट का। यहाँ पे भी आप सिलेक्शन करेंगे या तो हैवी एलिमेंट का या फिर स्मॉलर एलिमेंट का। सो बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म्स में काफी डिफरेंस है, इन सिलेक्शन सॉर्ट से काफी अच्छा है, दैट इज ए हीप सॉर्ट। So heap sort is a sorting algorithm which is roughly equivalent to the quick sort, and its average efficiency is n log to n. Okay, so in best case, in average case, the time complexity is n log n for an array of size n. अगर हम n data के ऊपर काम कर रहे हैं, so time complexity is n log n. So this heap sort is invented by J.W.J. Williams in 1964. So this is the introduction part. Now heap sort method. Now there are two important phases in this algorithm. The phase number one. So phase number one में हम क्या करेंगे, आपका जो input array है उसको हम convert करेंगे heap में. So this is also called the heapify. Okay, हम array को heapify करेंगे, हम उसको जो है heap में convert करेंगे, unsorted array को. So in this phase, the array containing the n data items is viewed as equivalent to a binary tree that is full at all levels. जैसे भी बताया था कि आप जो numbers हैं आप उसको view करेंगे binary tree की form में, और हर एक level के ऊपर वो full होंगे from left to right. For example, there are 11 numbers. Okay, A1 to A11. So numbers are 11, 1, 5, 7, 2. Okay. So this is my first number, that is for A of 1, and second two numbers A of 2, A of 3 आपके next layer के ऊपर होंगे, that is 1 and then 5. This is A of 2, A of 3. Okay, next layer पे आपके 4 elements होंगे, that is 7, 6, 12 and 17. 7, 6, 12 and 17. A of 4, A of 5, A of 6, A of 7 continuation में. एंड लास्ट जो भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो आप लास्ट लेयर में इस तरीके से स्टोर करेंगे. सो नंबर्स तो एरे के अंदर ही हैं, ओके, बट हमें व्यू करना है, हमें इमेजिन करना है कि आपका नंबर्स जो हैं वो कुछ ट्री की फॉर्म में है, लाइक दिस. So if somebody ask what is the child of 5, so 2 से multiply करेंगे तो this is the first child, और अगर आप 2 से multiply करके 1 add करेंगे that is 11, this is the second child. और अगर आप कोई पूछता है what parent of 5, तो 5 को 2 से divide करेंगे so definitely 2.5 आएगा, और उसका अगर आप floor value लेते हैं तो that is 2, so this is the father. Okay. Now after adopting the heap property, आप इसके ऊपर जब heap की property adopt करेंगे, okay, one by one करके इसको heapify करेंगे, इसको धीरे धीरे heap में convert करेंगे, so the structure of this tree becomes this one after adopting heap property. Okay, so ये इसका structure हो जाएगा. Now this is your heap. तो हम एक तो फेस नंबर 1 को यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे इसी एग्जांपल के थ्रू कि ये आपका स्ट्रक्चर जो है वो इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ. यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक नंबर जो है वो अपने चिल्ड्रन से ग्रेटर है. सो दिस इज द मैक्स हीप. ओके, 8 and 6, but this is greater. 11 and 5, but 12 is greater. Okay, this is 7, 4, this is greater. 1, 2, 6 is greater. So this is a heap. Okay, तो सबसे हैवी एलिमेंट जो है वो आपका रूट के ऊपर आ चुका है. So this is a phase number 1. हम इसको heapify करते हैं. Now in phase number 2, we know that heap property क्या है आपकी, the root of the tree has the largest key value. अगर आप heap में उसे convert कर चुके हैं. So in phase number 2, this phase of the heap sort finds the node with largest value in the tree and cuts it from the tree. आपको करना क्या है, सेकेंड फेज में जो सबसे हैवी एलिमेंट है जो रूट के ऊपर पहुंच चुका है उसको वहां से आप स्वैप कर देंगे और हीप के लास्ट एलिमेंट के साथ एक्सचेंज कर देंगे. सो जो हैवी एलिमेंट है उसकी पोजीशन एरे में कहां पर होने वाली थी, सबसे राइट में जाने वाली थी.
ओके, सॉर्टिंग में उसका प्लेस कहाँ पर होगा, सबसे राइट में। सो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम नंबर रखना चाहते हैं तो सो हम उसको फाइनली लास्ट पे प्लेस करेंगे, और लास्ट का नंबर जो है वो आप रूट के ऊपर लेके आएंगे। लेकिन ये प्रोसेस करने पे आपको होगा क्या, फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू विच इज ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द ट्री, स्वैप इट विद द लास्ट एलिमेंट। ऐसा करने से क्या होगा कि आपने रूट पे स्मॉलर वैल्यू को पुट करेंगे या किसी और वैल्यू को पुट करेंगे तो हीप डिस्टर्ब होगा, और फिर से आपको हीप की प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगी। अब रूट से आप हीप की प्रॉपर्टी लगाएंगे इन फेस नंबर 2। Now in this way find the second largest value which is also removed from the tree. Okay, swap it with the last element of heap, क्योंकि एक एलिमेंट तो ऑलरेडी कम हो चुका है, क्योंकि जो भी हैवी एलिमेंट था वो अपनी पोजीशन ले चुका है। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स में हैवी एलिमेंट आपका रूट के ऊपर जाएगा, और उसके बाद उसको कट करके उस हीप के लास्ट में आप उसे पुट करेंगे, यानी कि सेकेंड लास्ट पोजीशन के ऊपर रखेंगे। नाउ दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू, आप इसको कंटिन्यू रखेंगे। ओके, सो हाउ टू अचीव हीप प्रॉपर्टी। सबसे पहले फेस नंबर 1 को हम क्लियर करते हैं कि आप हीप की प्रॉपर्टी को अचीव कैसे कर पाते हैं, किस तरीके से उसको हीप में कन्वर्ट करते हैं। सो टू अचीव हीप प्रॉपर्टी वी टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, प्रोसेस करेंगे हम नोड्स को विच इज द पेरेंट ऑफ द राइट मोस्ट नोड ऑन द लोएस्ट लेवल। आप ट्री के सबसे लोएस्ट लेवल के ऊपर आइए और राइट मोस्ट नोड के पेरेंट से आप स्टार्ट करेंगे हीप की प्रॉपर्टी को अप्लाई करना। ओके, सो इफ द वैल्यू ऑफ इज लेस देन द वैल्यू ऑफ इट्स लार्जेस्ट चाइल्ड, आप दोनों चाइल्ड को कंपेयर करेंगे और उसमें से जो सबसे लार्जेस्ट चाइल्ड होगा उसको पेरेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे। अगर पेरेंट्स की वैल्यू स्मॉलर है, ओके, तो आप अपने लार्जेस्ट चाइल्ड के साथ में उन वैल्यू को स्वैप करेंगे। ओके, सो और अगर ऐसा नहीं है, फादर की वैल्यू ग्रेटर है, सो देन डू नथिंग, फिर आपको कुछ करना ही नहीं है उस केस में। तो सबसे पहला आपने हीप की प्रॉपर्टी को कहाँ पे अडॉप्ट किया, ट्री के सबसे लोएस्ट लेवल के राइट मोस्ट नोड के पेरेंट से स्टार्ट किया। ओके, तो उसका हम पेरेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, राइट मोस्ट जो आपका नंबर है उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, एरे का सबसे लास्ट एलिमेंट। ओके, दैट इज n। सो अगर आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो पेरेंट का इंडेक्स नंबर आएगा, और वहां पे आपको हीप की प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। नाउ पॉइंट नंबर 2, स्टेप नंबर 2, नाउ मूव लेफ्ट ऑन द सेम लेवल। अब आप हीप की प्रॉपर्टी को उसी लेवल पे आगे बढ़ के नेक्स्ट सब ट्री के ऊपर अप्लाई करेंगे। नाउ कंपेयर द वैल्यू ऑफ द पेरेंट विद इट्स चिल्ड्रन, इफ इट इज स्मॉलर देन द लार्जेस्ट चाइल्ड देन स्वैप। आप इन वैल्यू को स्वैप करेंगे, पेरेंट की वैल्यू को लार्जेस्ट चाइल्ड से कंपेयर करेंगे, और अगर पेरेंट की वैल्यू स्मॉलर है तो आप इसको स्वैप करेंगे। So on moving to left on the same level, if this end is reached, मान लीजिए आप लेयर वाइज हीप की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं और लेयर आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो आप मूव करिए, अपवर्ड डायरेक्शन में जाइए। ओके, एक लेवल अप हो जाएंगे और उस लेवल के राइट मोस्ट पेरेंट से आप प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, यानी हीप की प्रॉपर्टी को आप अप्लाई करेंगे। सो ये स्टेप आपको रिपीटेडली कंटिन्यू रखना है जब तक कि आपके सारे नोड्स के ऊपर हीप की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। आई मीन टू से दैट स्लोली आप उसको हीप में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो रिपीट ऑल अबव स्टेप्स अंटिल लेवल नंबर 1। ओके, जब तक लेवल नंबर 1 नहीं आता तब तक आप इसको करते रहेंगे। ओके, प्रोसेस में कंटिन्यू रखेंगे। तो ये प्रोसेस होने के बाद में आपका जो इनपुट एरे है वो हीप में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो रूट के ऊपर आ चुकी होगी। न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझते हैं हमने क्या क्या काम किया था। सो देयर आर 11 नंबर्स। ओके, सो नंबर्स को हम पहले एरे की फॉर्म में देखते हैं। दिस इज a of 1 एंड दिस इज a of 2, a of 3 एंड देन a of 4, a of 5, a of 6, a of 7, a of 8, a of 9, a of 10, a of 11. So numbers आपके आ गए 11, then 1, 5, 7, 6, okay, 7, 6, 12, 17, so 12, 17, and then 8, 4, 10, 2, 8, 4, 10, 2, ठीक है। So हम क्या काम करेंगे, हमने क्या कहा था कि सबसे नीचे का जो लेवल है, ओके, आई मीन टू से दैट दिस वन, ओके,
उसका राइट मोस्ट नोड के पेरेंट, तो इसका पेरेंट कौन है, दैट इज 6। सो 11 इज द इंडेक्स नंबर। 11 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, दैट इज 5.5। 5.5 का फ्लोर वैल्यू कितना होगा, दैट इज 5। सो दिस इज द पेरेंट। ओके, यहाँ पे हीप की प्रॉपर्टी लगाएंगे लाइक दिस। ओके, नाउ कंपेयर दीज टू चाइल्ड। इसमें सबसे हैवी चाइल्ड कौन सा है, दैट इज 10। सो 10 के साथ में हम पेरेंट को देखेंगे। Now, right now parent is smaller, so swap करेंगे आप। ओके, सो ये हीप में कन्वर्ट हो गया स्मॉल ट्री। ओके, अब इसी लेवल पे आप आगे बढ़ेंगे। नाउ कम टू दिस वन, नाउ अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ हीप हियर। हीप की प्रॉपर्टी आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो कंपेयर करेंगे चाइल्ड को। सो हैवी चाइल्ड इज 8 और फादर के साथ कंपेयर किया, फादर का वैल्यू स्मॉलर है, देन स्वैप। राइट नाउ ये भी हीप में कन्वर्ट हो गया। तो आप पहले हीप की प्रॉपर्टी ए ऑफ 5 पे लगाया था, फिर ए ऑफ 4 पे लगाया, डिक्रीज किया। ए ऑफ 4 को भी डिक्रीज करेंगे तो आप किस पे आ जाएंगे, ए ऑफ 3, यानी लेवल अप करेंगे। और लेवल अप के राइट मोस्ट ट्री के ऊपर आप हीप की प्रॉपर्टी लगाएंगे, आई मीन टू से यहाँ पर। सो देयर आर 2 चिल्ड्रन 12 एंड 17। हैवी चाइल्ड इज 17, तो 17 के साथ कंपेयर करेंगे और फादर इज स्मॉलर देन स्वैप। ओके, नाउ ये भी हीप में कन्वर्ट हो गया। अब हीप की प्रॉपर्टी कहाँ पे लगाएंगे, ए ऑफ 3 से आप अगर डिक्रीज करते हैं 1 के साथ में तो ए ऑफ 2 के ऊपर। राइट नाउ हीप की प्रॉपर्टी आप इस पॉइंट पे लगाने वाले हैं। ओके, ओके, सो देयर आर 2 चिल्ड्रन दैट इज 8 एंड 10। सो हैवी चाइल्ड इज 10, तो 10 के साथ में एक स्वैप करेंगे। सो जैसे ही आप स्वैप करते हैं तो नीचे का ट्री भी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हीप की प्रॉपर्टी आप नीचे भी लगाएंगे। सो हैवी चाइल्ड इज 6, 6 के साथ में 1 को कंपेयर किया, सो 1 इज स्मॉलर देन स्वैप अगेन। ओके, 1 नीचे आएगा, 6 ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला ट्री भी आपका हीप में कन्वर्ट हो गया। ओके, हीप की प्रॉपर्टी ए ऑफ 3 के बाद ए ऑफ 2, ए ऑफ 2 के बाद में आप और डिक्रीज करिए, लेवल अप करिए राइट नाउ हियर। सो हीप की प्रॉपर्टी आप कहाँ लगाने वाले हैं, 11 के ऊपर। So there are 2 child 10 and 17 and the heavy child is 17. तो 17 के साथ में आप कंपेयर करेंगे because 11 is smaller, so swap। जैसे ही आप स्वैप करते हैं तो नीचे का ट्री भी आपका डिस्टर्ब हो गया। सो हेयर 12 एंड 5 में ग्रेटर नंबर कौन है, दैट इज 12, और 12 को आपने पेरेंट से कंपेयर किया, पेरेंट इज स्मॉलर देन स्वैप अगेन। सो 12 ऊपर जाएगा, 11 नीचे आएगा। सो राइट नाउ द टास्क इज ओवर। तो आपका फेस नंबर 1 जो कंप्लीट होता है तो आप देखेंगे हैवी नंबर जो है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो आपका रूट के ऊपर आ चुका है। नाउ कम टू फेस नंबर 2। ओके, तो आप देखेंगे नंबर्स आपके क्या है, दिस इज 11 to 2, तो 17 आपका कहाँ पर आ गया, दिस इज फर्स्ट पोजीशन के ऊपर, एंड देन 10 एंड देन 12। ओके, 8 6, तो नंबर की पोजीशन जो ओरिजिनल जो थी वो आपकी आपस में चेंज हो गई है। जो हैवी नंबर है वो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है। असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो डेफिनेटली 17 को कहाँ पे जाना चाहिए, लास्ट पे जाना चाहिए, और लास्ट वाले नंबर को फिर आप ऑटोमेटिकली फर्स्ट नंबर पे ही लेके आएंगे। So this is 2 and this is 17. So phase number 1 कंप्लीट होने के बाद में जो इनपुट था वो आपका हीप में कन्वर्ट हो गया। So this is a max heap. Now this is phase number 2. So according to heap property, root of the tree has the largest value. Okay, ये हम सबको पता है। Now in phase number 2, this phase of the heap sort find the node with largest value, जो कि हमने निकाल ही लिया, heavy element आ चुका है ऊपर, एंड कट्स इट फ्रॉम द ट्री। इसको आप वहां से कट करेंगे। ओके, आप स्वैप करेंगे हीप के लास्ट एलिमेंट के साथ में। सो स्वैप रूट वैल्यू विद लास्ट वैल्यू ऑफ हीप। राइट नाउ द हीप का साइज कितना दिखा रखा है, दैट इज n। सो आफ्टर स्वैपिंग हीप बिकम्स डिस्टर्ब। ओके, हीप तो आपका डिस्टर्ब हो गया क्योंकि कोई स्मॉलर वैल्यू ऊपर पहुंच चुकी है, हैवी वैल्यू तो आ चुकी है। So once again apply the heap property from root on remaining heap. Okay, तो अब heap की प्रॉपर्टी आप रूट से लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी नीचे का कंस्ट्रक्शंस तो हीपीफाई आप ऑलरेडी कर चुके थे। एक वैल्यू को डिस्टर्ब करने से हीप का प्रॉपर्टी आपको कहाँ पे लगाना पड़ेगा, रूट से लगाना पड़ेगा। और वहां पे चिल्ड्रंस को देखेंगे हैवी चाइल्ड कौन है, हैवी चाइल्ड अगर फादर का वैल्यू स्मॉलर है तो वहां पे स्वैप करेंगे और ये स्वैपिंग जो है वो नीचे तक आएगी जहां तक फादर का वैल्यू स्मॉलर है। सो
आफ्टर अप्लाइंग हीप प्रॉपर्टी, ओके, जब आप अप्लाई करेंगे तो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट कहाँ पे पहुंचेगा? सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो रूट के ऊपर पहुंचेगा, ओके, एंड विच इज ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द ट्री, ओके, स्वैप करेंगे। स्वैप किसके साथ में करेंगे? हीप के लास्ट एलिमेंट के साथ में, क्योंकि हीप का साइज डिक्रीज हो गया है, पहला वैल्यू तो अपनी पोजीशन ले चुका है, तो डेफिनेटली आप सेकेंड लास्ट से स्वैप करेंगे। सो दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू, आप ये प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे जब तक के सारे नंबर हमारे सॉर्ट नहीं होते। ओके, सो फेस नंबर 1 में आपने इनपुट दिया था, तो फेस नंबर 1 का जो आउटपुट आया, सो दैट इज दिस वन। फेस नंबर 1 के आउटपुट के ऊपर अब आप काम करेंगे, तो दैट इज द फेस नंबर 2। तो यहाँ पे 17 इज द हैवी एलिमेंट और दिस इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ हीप, इनको आपस में स्वैप करेंगे। व्हाट इज द साइज ऑफ हीप? दैट इज n, number of element is 11, so this is 11, okay, so size of heap is 11. So in phase number 2, swap the root value, that is a of 1, with the last element of heap, that is a of n, it is a of 11, okay, तो 17 और 2 को आप स्वैप करेंगे, ओके। सो हैवी एलिमेंट अपनी जगह पे आ गया, सो आपने इसको कट कर दिया। अब हीप में आपके एलिमेंट्स कितने बचे? दैट इज n माइनस 1, अभी 11 है तो अब 10 एलिमेंट्स रहेंगे हीप में, ओके। नाउ हीप इज डिस्टर्ब, सो हीप का प्रॉपर्टी आप रूट से अप्लाई करेंगे। 17 अपनी पोजीशन पे आ चुका है स्वैप करने के बाद में, सो अप्लाई द हीप प्रॉपर्टी फ्रॉम हियर, और कितने? n-1 एलिमेंट के ऊपर लगाएंगे, 17 के ऊपर नहीं लगाएंगे, 17 इज नॉट द पार्ट ऑफ हीप, ओके। सो देयर आर 2 चाइल्ड 10 एंड 12, क्योंकि हीप की प्रॉपर्टी रूट से आप लगा रहे हैं तो उसके 2 चाइल्ड हैं, सो हैवी चाइल्ड इज दिस वन, सो यहाँ पे एक स्वैप करेंगे। नाउ आफ्टर दैट 11 इज हैवी, सो 11 के साथ में 2 को कंपेयर करेंगे, सो 11 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, ओके। सो इन दिस वे द सेकेंड हैवी एलिमेंट आपका कहाँ पे पहुंचता है? रूट के ऊपर स्विच करता है, ओके। सो अब आप क्या करने वाले हैं? 12 को हीप के लास्ट एलिमेंट से स्वैप करेंगे। राइट नाउ द लास्ट एलिमेंट ऑफ हीप इज a of 10, नॉट a of 11, ये तो कट हो चुका है। सो 12 को आप स्विच करेंगे, ठीक, इंटरचेंज करेंगे हीप के लास्ट एलिमेंट के साथ में। सो 10 और 1 आपस में एक्सचेंज हो गया, सो एरे में 12 की पोजीशन भी फ्रीज हो जाती है। सो आप देखेंगे नंबर पीछे से सॉर्टेड हो रहे हैं, ओके। द 17 एंड द सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट आपका a of 10 के ऊपर आ चुका है। नाउ हीप डिस्टर्ब हो गया तो हीप की प्रॉपर्टी लगाएंगे, सो देयर आर 2 चाइल्ड, दैट इज a 10 एंड देन 11, सो हैवी चाइल्ड इज 11, तो 1 को 11 के साथ में कंपेयर करेंगे, 1 इज स्मॉलर देन स्वैप, ओके। हैवी चाइल्ड इज 5, 5 को 1 से कंपेयर करेंगे, सो 1 इज स्मॉलर देन अगेन स्वैप। सो इन दिस वे आपका थर्ड हैवी एलिमेंट आपका कहाँ पे आ गया? रूट के ऊपर आ चुका है। सो एरे में आपके नंबर्स कहाँ पे आ गए? एरे में आपके नंबर्स जो हैं, देखिए हैवी एलिमेंट और 17 हैवी एलिमेंट और नेक्स्ट हैवी एलिमेंट इज 12, पीछे से नंबर सॉर्टेड होते जा रहे हैं, ओके। राइट नाउ द साइज ऑफ हीप इज 9, अभी 10 था, अब आपका हीप का साइज कितना हो गया? दैट इज 9, और जो भी रिमेनिंग एलिमेंट हीप में है उसका जो हैवी एलिमेंट है वो कहाँ पे आ चुका है? रूट के ऊपर स्विच कर चुका है। नाउ ओके, 11 को हम स्वैप करेंगे हीप के लास्ट एलिमेंट के साथ में, लाइक दिस, ओके। सो हीप फिर से डिस्टर्ब हो गया, 11 अपनी पोजीशन ले चुका है, सो अब हीप की प्रॉपर्टी आप बचे हुए टर्म्स के ऊपर लगाएंगे, दैट इज 8 टर्म्स के ऊपर आप लगाएंगे, ओके। सो हैवी चाइल्ड इज 10, सो सबसे पहले आप यहाँ पे स्वैप करेंगे बिकॉज 4 इज स्मॉलर। नाउ देयर आर 2 चिल्ड्रन, दैट इज 8 एंड 6, सो हैवी चाइल्ड इज 8, तो आप इसको भी स्वैप करेंगे, ओके। नाउ देयर इज ओनली 1 चाइल्ड, नॉट दिस वन, बिकॉज ये फ्रीज हो चुका है, ये कट हो चुका है, सो आप इकलौते चाइल्ड से कंपेयर करेंगे एंड दिस इज ग्रेटर देन 4, ओके। सो एक स्वैप आप यहाँ पे करेंगे, तो इस तरीके से 7 आप अपवर्ड डायरेक्शन जाएगा, 4 आपका नीचे आ जाता है। सो राइट नाउ आपका फिर से हीप में कन्वर्ट हो चुका है ये स्ट्रक्चर, ओके। द नेक्स्ट हाईएस्ट एलिमेंट जो है रूट के ऊपर आ चुका है। नंबर्स आप देखेंगे, पहले आपके 12 और 17 थे, अब 11 भी अपनी पोजीशन ले चुका है, ओके। सो कट 10,
फ्रॉम हेयर, और इसको हम ऐड कर देंगे लास्ट में, और 4 को कट करके हम कहाँ पे ले आएंगे, रूट के ऊपर। सो स्वैप कर दी वैल्यूज आपने। सो 10 अपनी पोजीशन पे जा चुका है, द फोर्थ लार्जेस्ट नंबर। नाउ रूट पे पहुंचने पे 4 आपका हीप जो है वो डिस्टर्ब हो गया। ओके, सो आप हीप की प्रॉपर्टी को आप फिर लगाएंगे रिमेनिंग एलिमेंट्स के ऊपर, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 7। ओके, सो हैवी चाइल्ड इज 8 के साथ में कंपेयर किया, देन स्वैप बिकॉज 4 इज स्मॉलर। नाउ द हैवी चाइल्ड इज 7, सो 7 से कंपेयर किया, 4 इज स्मॉलर, सो एक स्वैप यहाँ पे बनेगा। तो आप देख रहे होंगे जो रिमेनिंग एलिमेंट्स में जो हैवी एलिमेंट था रूट के ऊपर जा चुका है। ओके, सो 10 की पोजीशन आपकी फ्रीज हो गई। नाउ अब आप इसको क्या करेंगे, कट करेंगे और हीप के लास्ट एलिमेंट के साथ में एक्सचेंज करेंगे। सो व्हाट इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ हीप? a of 7 इज द लास्ट एलिमेंट। ओके, सो 8 को आप 1 के साथ में स्वैप करेंगे, राइट। ओके, सो 8 अपनी पोजीशन पे आ चुका है, दिस इज द 5th हाईएस्ट एलिमेंट, तो अपनी पोजीशन पे पहुंच चुका है, बट हीप डिस्टर्ब हो गया, तो हीप की प्रॉपर्टी आप किस पे लगाएंगे, जो बचे हुए नंबर्स हैं। सो देयर आर 6 नंबर्स। सो हैवी चाइल्ड इज 7, सो 1 को 7 के साथ में कंपेयर किया, सो 1 इज स्मॉलर देन स्वैप। नाउ 4 and 6 आर 2 चिल्ड्रन, सो हैवी चाइल्ड इज 6, तो 6 के साथ कंपेयर किया, सो स्वैप, एक्सचेंज हो गया। ओके, सो इन दिस वे हैवी एलिमेंट 7 आपका पहुंच चुका है अपनी पोजीशन के ऊपर। अब आप नंबर्स जो हैं आपके सॉर्ट हो चुके हैं, 5 नंबर्स पीछे से सॉर्ट होते चले जा रहे हैं। ओके, हीप की प्रॉपर्टी आप 6 एलिमेंट्स के ऊपर लगाए हैं, सो इसी वजह से 7 अपनी पोजीशन पे पहुंचा है। नाउ आप 7 को आप हीप के लास्ट एलिमेंट से स्वैप करेंगे। सो व्हाट इज द लास्ट एलिमेंट राइट नाउ? आपके पास में हीप में कितने एलिमेंट्स हैं? a of 1 से लेके a of 6, सो a of 6 इज द लास्ट एलिमेंट। ओके, सो इन दोनों को आपस में स्वैप किया। नाउ हीप आपका डिस्टर्ब हो गया। ओके, 7 अपनी पोजीशन पे आ चुका है। हीप का प्रॉपर्टी आप रूट के ऊपर लगाइए, हैवी चाइल्ड इज 6, तो आप एक स्वैप यहाँ पे करेंगे। ओके, एंड द नेक्स्ट हैवी एलिमेंट इज 4, 1 इज स्मॉलर, सो एक स्वैप यहाँ पे करेंगे। ओके, सो इन दिस वे आपके बचे हुए नंबर्स में हैवी एलिमेंट जो है रूट के ऊपर पहुंच चुका है, और आपके नंबर सॉर्ट हो चुके हैं। हाउ मेनी नंबर्स? 6 नंबर्स पीछे से सॉर्ट हो चुके हैं। सो 7 की पोजीशन कहाँ पर आती है? 6 पोजीशन के ऊपर। ओके, सो नाउ आप इसको एक्सचेंज करेंगे हीप के लास्ट एलिमेंट के साथ में। राइट नाउ रिमेनिंग टर्म्स जो बचे हैं, सो a of 5 इज द लास्ट वन, सो डेफिनेटली हम इसको स्वैप करेंगे 6 को 1 के साथ में। ओके, सो 6 अपनी पोजीशन पे आ गया, नंबर एक और सॉर्ट हो चुका है, ये यहाँ से कट हो गया, बट 1 जो है यहाँ आने से हीप जो है डिस्टर्ब हो गया, तो हीप को फिर से बनाने के लिए आप हीप की प्रॉपर्टी रूट से लगाएंगे, तो कंपेयर करेंगे चाइल्ड ग्रेटर इज 5, सो स्वैप दीज टू नंबर्स। आगे नहीं कंपेयर करेंगे क्योंकि ये अब हीप में से कट चुके हैं पोर्शंस। सो 5 इज द हैवी एलिमेंट जो कि आपका रूट के ऊपर आ चुका है। सो एरे में आपके कितने एलिमेंट सॉर्ट हो गए? ओके, सो आपके 7 एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं पीछे से। ओके, नाउ हीप की प्रॉपर्टी आप लगाने के बाद में आप हीप के लास्ट एलिमेंट से कट करेंगे। सो राइट नाउ व्हाट इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ हीप? यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं, सो a of 4 इज द लास्ट वन, सो 5 को आप 2 के साथ में स्वैप कर रहे हैं, दिस वन। ओके, सो 5 अपनी पोजीशन पे आ चुका है। ओके, ये भी ट्री से कट हो गया। नाउ देयर आर 3 एलिमेंट्स। ओके, हीप डिस्टर्ब हो चुका है, सो आप हीप की प्रॉपर्टी रूट पे फिर लगाएंगे। सो हैवी चाइल्ड इज 4, तो 4 के साथ में कंपेयर करेंगे, यस एक्सचेंज बिकॉज 2 इज स्मॉलर। ओके, सो हैवी एलिमेंट आपका रूट के ऊपर जा चुका है। तो आपके कितने एलिमेंट्स सॉर्ट हो चुके हैं? यहाँ पर 8 एलिमेंट्स आपके सॉर्ट हो चुके हैं। ओके, सो राइट नाउ 4 को हीप के लास्ट के साथ में कन्वर्ट कर दीजिए, एक्सचेंज कर दीजिएगा। सो लास्ट एलिमेंट इज 3, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, सो दिस इज द लास्ट एलिमेंट। ओके, यहाँ पे आपने एक्सचेंज किया। सो 4 की पोजीशन फ्रीज हो चुकी है। सो देयर आर 2 एलिमेंट्स, हीप डिस्टर्ब हो गया, ओनली 1 चाइल्ड, सो एक ही चाइल्ड के साथ में आप कंपेयर करते हैं और दैट चाइल्ड इज ग्रेटर, तो डेफिनेटली आप इसको आपस में स्वैप करेंगे। ओके, स्वैप करने पे हैवी एलिमेंट अपनी पोजीशन पे आ चुका है। ओके, यहाँ पे आपके कितने एलिमेंट्स हो गए? 9 एलिमेंट्स आपके सॉर्ट हो चुके हैं, राइट। सो
ओके, दिस इज द 2। अब आप इस हैवी एलिमेंट्स को, जो बचे हुए आपके नंबर्स हैं, वो उसमें जो हैवी है वो रूट पे पहुंचा, और हीप के लास्ट एलिमेंट के साथ में आप इसको स्वैप करेंगे, एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ हीप इज ओनली a of 2। ओके, सो आप इसको इसके साथ में स्वैप करेंगे। ओके, सो 2 की पोजीशन फ्रीज हो गई, ये ब्राउन हो गया, नाउ ये भी आपका कट हो गया, सो आपके पास सिर्फ एक नंबर बचता है, तो आगे प्रोसेस आप कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हीप का साइज लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। ओके, सो फाइनली आपके 10 नंबर्स यहाँ पे सॉर्ट हो चुके हैं, और 1 को सॉर्ट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो आपका फर्स्ट पोजीशन पे ही रहेगा, कंपैरिजन के लिए कुछ नहीं बचा। सो द हीप साइज इज राइट नाउ 1। सो प्रोसेस इज ओवर। जैसे ही हीप का साइज जब 1 हो जाता है, हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। नंबर्स जो हैं वो आप देख रहे होंगे सब सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुके हैं। सो दिस इज द मेथड ऑफ हीप सॉर्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कोडिंग पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू सो मच।